So today we have a new problem which is diagonal sum in binary tree. So it's a GFG problem and medium level problem. So let's read the problem statement. So problem is say that we have consider a red lines of slope -1 passing between nodes in following diagram. You can see this diagram. The diagonal sum is a binary tree is the sum of all nodes data lying between these lines. Okay. So given in a binary tree of size n, print all diagonal sums. So we have to print all diagonal sums. So like diagonal sum is like 1 plus 3 plus 5. It is a diagonal. It can make a diagonal. So the sum is 5 plus 3 plus 1. So the sum will be 9. Now it can also make a diagonal 2 plus 6 plus 4 plus 7 because none ये डायग्राम में इतना अच्छे से दिखा नहीं रखा पर ये एक डायगोनल की फॉर्म में आ रहे हैं ठीक है तो 2 plus 6 plus 4 plus 7 the sum will be 19 and as same as 9 plus 10 plus 11 plus 12 the sum will be 42 so we have to print 9 comma 19 comma 42 so as you can see this example also 4 plus 3 this can be a diagonal so 4 plus 3 will be 7 and 1 plus 3 will be 4 so 7 comma 4 will be our answer as you can see this example also 10 plus 2 12 then 12 then 8 plus 5 plus 2 uh, sorry 8 plus 5 this is 8 plus yeah 8 plus 5 plus 2 this will be 15 and this will be 3 so we have to find basically we have to find the diagonal sum so it is like a same like a level order traversal in level order traversal we traverse the level by level first level then second level then third level but here we are traversing with some angle we are traversing diagonal wise like we are traversing first this diagonal then we are traversing this diagonal then this diagonal so it is same like a level order traversal but we have to make some changes here so let's see the approach for this so approach will be same like we have to apply the level order traversal so the technique is level order to technique of, for applying the level order traversal is same firstly we will put the root node into the queue and then we will apply a loop while my queue is not empty but जब तक queue empty नहीं होती तब तक के लिए loop चलेगा and we will initialize the sum equals to 0 and the size equals to q dot size and while size minus minus this is same like a लेबर ऑर्डर ट्रेवल्सल सो इसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ठीक है द मेन टेक्निक इज दिस वन ठीक है सो नोड स्टार करंट इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट एट क्यू डॉट पॉप कर देंगे उसको ठीक है क्यू में से पॉप कर देंगे दिस इज सेम एज लेबर ऑर्डर ट्रेवल्सल सो ये वाली टेक्निक है जो है ठीक है इसमें क्या कर रहे हैं वाइल वी आर यूजिंग करंट इज नॉट इक्वल टू नल जब तक के लिए मेरा करंट नल नहीं होता इनिशियली करंट क्या है मेरा क्यू डॉट फ्रंट है क्यू के अंदर जो पड़ा हुआ है डेटा वो है ठीक है इफ क्यू करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है अगर सिंपल टेक्निक है देखो इफ करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको करंट को तो मैं क्या कर दूंगा उसको जो लेफ्ट है लेफ्ट वाला डेटा है उसको करंट का लेफ्ट को क्यू में पुश कर दूंगा लाइक वी हैव टू फाइंड द सम 1 plus 3 plus 5 जो राइट वाला है उसको मेरे को सम फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा अगर मेरा करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो जो क्यू में है ना उस लेफ्ट को डाल दूंगा करंट के लेफ्ट को डाल दूंगा और करंट का जो डेटा है उसको मैं ऐड कर दूंगा सम प्लस इक्वल टू करंट का डेटा इनिशियली करंट का डेटा कहाँ था 1 था तो 1 को ऐड कर दूंगा ठीक है फिर मैं करंट को क्या कर दूंगा करंट का राइट कर दूंगा ठीक है करंट इक्वल टू करंट का राइट सो करंट यहाँ पर आ गया फिर सेम करूंगा मैं कि लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्यू में पुश कर दो और जो करंट का डेटा है उसको सम प्लस इक्वल टू करंट का डेटा मतलब यहाँ पहले सम कितना था 1 था अब 1 plus 3 4 हो जाएगा और करंट को क्या भेज दूंगा करंट के राइट में भेज दूंगा अब करंट यहाँ पे आ गया 5 पे सेम ऐसे करते जाएंगे सो फाइनली सम कितना आ जाएगा इस वाले डायगोनल का 9 आ जाएगा क्योंकि चार चार तो यहाँ से आया यहाँ से आ ही गया था और 5 प्लस इंक्लूड हो जाएगा तो उसमें 9 बन जाएगा ठीक है सो सेम टेक्निक वी विल यूज हेयर इफ करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट वाला है ये वाला चीज लेफ्ट वाली है ठीक है इसको मैं क्यू में अंदर पुश कर दूंगा और सम है जो मेरा इनिशियली सम 0 है सम में क्या कर दूंगा करंट का डेटा ऐड कर दूंगा जो भी करंट है मान लो करंट ये करंट सम प्लस इक्वल टू करंट का डेटा और करंट को क्या भेज दूंगा मैं लेफ्ट राइट में भेज दूंगा करंट इक्वल टू करंट का राइट तो बिकॉज बेसिकली मेरे को राइट वाला सम ही तो फाइंड करता है बिकॉज हम यहाँ से ये राइट में ही तो जा रहे हैं लेफ्ट में तो जा नहीं रहे राइट में ही जा रहे हैं तो राइट में जा रहे हैं तो मेरे को करंट को बार बार राइट में भेजना पड़ेगा क्योंकि मैं उसका डेटा ऐड कर रहा हूँ मैं बार बार मैं करंट का डेटा ऐड करता जा रहा हूँ सो करंट को मेरे को बार बार में राइट भेजना पड़ेगा सो दैट इज द टेक्निक सो अगर
सिंपली बेसिकली मैं कर ही क्या रहा हूँ यहाँ पर, अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको क्यू में पुश कर दो और करंट को क्या भेज दो, करंट के डेटा को सम में इंक्लूड कर दो और करंट को राइट में भेज दो। सिंपली बस ये चीज मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है, जब तक कि मेरा करंट नल ना ही हो जाता, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। और फाइनली क्या कर दोगे, आंसर डॉट पुश बैक ऑफ सम एंड रिटर्न, we will return our answer. So let's do the code for this. So the coding part is very simple. Yeah. So for the coding part, what we'll do, we'll create a answer vector that we have to return, because answer vector को अब मेरे को return करना पड़ेगा क्योंकि ये array की फॉर्म में है आंसर मेरा। तो आंसर वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब क्यू बना देते हैं, क्यू ऑफ नोड स्टार विच इज क्यू। क्यू के अंदर मैं क्या कर पुश कर रहा हूँ, इनिशियली क्यू के अंदर रूट को पुश करूंगा तो क्यू डॉट पुश ऑफ रूट, ठीक है। और एक लूप अप्लाई करूंगा, वाइल माई क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं अप्लाई करता जाऊंगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई ए सम, ठीक है। एक सम बना लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। इनिशियली सम जीरो है, सॉरी, और एक साइज भी बना लेता हूँ कि अभी साइज कितना है क्यू का, क्यू डॉट साइज, ठीक है। वाइल अब लूप अप्लाई करेंगे, वाइल साइज माइनस माइनस, साइज को डिक्रीज करते जाएंगे जब तक के लिए साइज है, साइज को एक से डिक्रीज करते जाएंगे। और एक अब मैं क्या करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ, एक पैरामीटर लाइक नोड स्टार करंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, जो कि फ्रंट को पॉप कर देगा। दिस इज द सेम टेक्निक इन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो अभी तक कुछ ऐसा नया नहीं किया, ठीक है, सब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का ही टेक्निक है ये, ठीक है। और क्यू डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। अभी तक सब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का था। नाउ अब थोड़ा सा लग जाते हैं, वाइल माई करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक के लिए मेरा करंट नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, तब तक के लिए मैं क्या करूंगा, जो कि मैंने बोला था यहाँ पे कि अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको क्यू में पुश कर दूंगा। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, इफ करंट का, सॉरी, करंट का लेफ्ट, इफ करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ऐसा है तो क्यू डॉट पुश ऑफ करंट का लेफ्ट, ठीक है। एंड जो भी करंट का डेटा है उसको मैं सम में इंक्लूड करते जाऊंगा, सम प्लस इक्वल टू करंट का डेटा, ठीक है। और जो करंट है मेरा, करंट को राइट में भेजता जाऊंगा, लाइक आई हैव टोल्ड दिस हियर कि करंट का डेटा ऐड कर दिया, अब करंट को मैं राइट में भेज दूंगा, कि राइट में 3 पर आ जाएगा, ठीक है। सो भेज देते हैं, करंट इक्वल टू करंट का राइट, ठीक है, सिंपल, या। सो आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, आफ्टर दिस लूप, this while loop actually, I will push the I will push the sum in answer dot push back of sum, and finally we will return our answer. Sorry. Yeah, we will return our answer. So this was a complete code. Let's run this and see if this will work or not. थोड़ी बहुत एरर आ सकता है, देखते हैं। Yeah, q dot push off, सॉरी, ये q dot push off root, एक या दो एरर तो आ ही जाती है, ठीक है, चलता है। Yeah, it is coming perfect. Let's submit this. Yeah. So as you can see here, we have passed all the test cases. So this was the complete code. In this code, what I have done is simple level order traversal. This was the technique of level order traversal. क्यू बनाएंगे, क्यू में रूट को पुश करेंगे, जब तक कि मेरा क्यू नल नहीं हो जाता तब तक के लिए लूप अप्लाई करूंगा, और सिंपल एक सम बना ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐड करता हुआ जाना है, ठीक है। साइज डिक्लेयर कर लिया, जब तक के लिए साइज मेरा नल नहीं हो जाता, सब तक के लिए मेरा साइज है, साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तक के लिए एक वाइल लूप चलाऊंगा। और एक काउंट की ट्रैक रखने के लिए करंट बना ले रहा हूँ, करंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू को पॉप कर दे रहा हूँ। दिस इज द सेम टेक्निक इन लेवल ऑर्डर ट्रांसफर, बट ये लूप है, ठीक है। इस ये लूप वाला काम ये हमने किया है, जब तक कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो मैं देखूंगा इफ करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको क्यू में पुश कर दो, और सम में करंट की डेटा को ऐड कर दो और करंट को राइट में भेज दो, बिकॉज बेसिकली मेरे को इस ऐसे जाना है लेवल ऑर्डर ट्रांसफर में।
मेरे को नहीं पता आपको कैसा दिख रहा हो, पर यहाँ राइट की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, लेफ्ट की ओर नहीं जा रहे, इधर की ओर नहीं जा रहे, राइट की ओर जा रहे हैं, तो राइट वाला डेटा ऐड करते हुए जाना मेरे को। सम प्लस इक्वल टू करंट का डेटा, करंट को राइट में भेज दिया, सम प्लस इक्वल टू करंट का डेटा राइट में भेज दिया, ऐसा करना है, ठीक है। और फाइनली मैं आंसर वेक्टर में उसको पुश कर दूंगा सम को, और at the end we will return our answer. So this was the complete code. If you find this helpful then please like, share and subscribe. तब तक के लिए बाय। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। बाय।